السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ قومی اسمبلی میں 3 روزہ کی ہنگامہ آرائی کے بعد ماحول اچانک بدل گیا۔ 3 روز بعد اپوزیشن لیڈر کی تقریر مکمل ہو گئی۔ اراکین نے اپنی اپنی نشستوں پر خاموشی سے قائد حزب اختلاف کی بجٹ تقریر سنی۔ شہباز شریف نے کہا عوام کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے۔ غریب عوام کے لیے ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے۔ لوگ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، کئی سکول چھوڑ گئے۔ 3 سال کے دوران پاکستان میں مفلسی اور غربت نے جگہ لی۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں ہر صفحے پر مہنگائی 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 لکھا تھا۔ چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی۔ کہاں کا انصاف ہے؟ فرد واحد کی ضد اور ادا سے قومیں نہیں بنتی۔ پارلیمنٹیرین کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ پرامن صورتحال کے باعث اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تقریر مکمل کرنے کا موقع مل گیا۔ 2.25 گھنٹے ایوان میں تقریر کی۔ اسمبلی میں پیش آنے والے واقعات کو افسوسناک قرار دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر کھل کر تنقید کی۔ میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ تھا اپوزیشن کا کہ ہم یہاں پر بات کریں گے، ہماری بات سنی جائے گی، تو ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ان کی بھی بات سنیں گے۔ لیکن بہرحال جو ہوا، جناب اسپیکر، نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت غلط پیغام گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح بلند ترین سطح پر ہے۔ 1200 ارب روپے کا کرونا پیکج غفلت کی نظر ہو گیا۔ چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی۔ کہاں کا انصاف ہے؟ نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا۔ مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا، انہوں نے اناؤنس کیا، وہ بدترین غفلت، نیگلیجنس، انکمپٹنس کے نظر ہو گیا۔ دیکھیے کہ چین نے ہمیں تحفتاً ویکسین دی، جس کی ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے، لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ بے روزگاری کی شرح پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے، 15%۔ جناب اسپیکر، ریاست مدینہ کا دن رات ذکر کرنا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی خدا نہ خواستہ بھوکا رات کو سوئے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ریاست مدینہ میں کوئی اپنا آسمان کھلے آسمان کے نیچے سوئے گا؟ اس سے تو پرانا پاکستان بہتر تھا۔ شہباز شریف تقریر کے دوران حکومت پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے کہا کہ چور چور ڈاکو کے نعروں سے قومیں نہیں بنتی، فرد واحد کی ضد اور اناج سے قومیں نہیں بنتی۔ قائد حزب اختلاف نے وزیر پیٹرولیم کو چیلنج کیا کہ حقائق کی بنیاد پر جھوٹا ثابت کر دیں تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ شہباز شریف ضمانتی تھے، کاش وہ نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنے کا کہتے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا شکوہ، کہا نواز شریف 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے، وہ واپس آئیں۔ 3 دفعہ وفاق میں حکومت کرنے کے بعد کاش مسلم لیگ نون کی قیادت ایک ہسپتال اپنے علاج کے لیے ہی بنا لیتے۔ اپوزیشن لیڈر لنگر خانوں میں جا کر دیکھیں، وہاں غریبوں کو کیسے عزت دی جاتی ہے۔ فخر ہے میرے لیڈر نے حکومت پہ آنے کے بعد نہیں، شوکت خانم کے ذریعے پہلے خدمت کی۔ دفعہ وفاق میں حکومت ہونے کے بعد، 4 دفعہ صوبے میں حکومت ہونے کے بعد، کاش ایک ہسپتال ایسا ہوتا کہ جب میاں صاحب کی صحت، ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس میں پرابلم ہو رہا تھا، ان کی صحت کا مسئلہ تھا، کاش ایک ہسپتال پاکستان میں ہوتا کہ ہاں میاں صاحب کہتے مجھے اس ہسپتال کے صحت میں جو کام کیا جا رہا ہے، جو علاج کیا جا رہا ہے، اس پہ یقین ہے، میں اس ہسپتال میں جاؤں گا، میں باہر ملک میں نہیں جاتا۔ وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جس کے آپ بھائی بھی ہیں، جس کے آپ ضمانتی تھے کہ یہ واپس آئیں گے، کاش آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم پاکستان تو واپس آ جائیں۔ حکومت نے اپوزیشن کو رام کر لیا۔ فریقین نے ایوان کی کارروائی کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ ایوان میں آئندہ گالم گلوچ نہیں ہوگی، اراکین اپنی نشستوں سے بھی نہیں اٹھیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ اپوزیشن ارکان کی اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے اہم بیٹھک ہوئی۔ اسپیکر نے حکومت اور اپوزیشن سے معاملات سلجھانے کی درخواست کی۔ اپوزیشن نے ملاقات میں شرط عائد کی کہ حکومت نے ایجنڈا بلڈوز کر کے جو قانون سازی کی وہ واپس لے۔ ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں گے۔ سرائے کے مطابق متحدہ اپوزیشن نے یو ٹرن لیتے ہوئے
डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जुम्मा को होनी थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईवान में जो कुछ हुआ इससे सबकी सुबकी हुई। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि इदारे फंक्शनल ना हो। हुकूमत और अपोजिशन की भी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। तमाम जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई और इसके ऊपर इत्तफाक राय किया गया कि असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई उससे पार्लिमान की सुबकी हुई। परवेज खटक ने कहा कि चाहे शोर शराबा हो या हंगामा, बजट पास हो जाएगा, लेकिन अरकान असम्बली की जिम्मेदारी है वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। आज हमारी अपोजिशन से अभी मीटिंग हुई है और एक कंसेंसस बना है, जो प्रपोजल बनी है उस पे जाके अभी आज ही स्पीकर साहब असेंबली में अनाउंस करेंगे। उनके साथ ये फैसला हुआ है कि हमने असेंबली स्मूथली चलानी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। मौजूदा ईवान को तश्कील पाए 3 साल होने को है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से शोर शराबा ही चलता रहा है। देखना ये है कि अब फ्री कैन के दरमियान होने वाला मुआहिदा कब तक चलता है। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। नून लीग सुन ले, जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादिम आला की घिसी पीटी फिल्म नहीं चलेगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं भगोड़े हिदायतकार लंदन में पोलो मैच के मजे ले रहे हैं और खामोश फिल्मसाज रायवेड में बैठी हैं। शीन लीग का टोला जाली खादिम आला के गुब्बारे में हवा भर रहा है। जाली खादिम आला और पर्ची शहजादे में मोहब्बत की पींगें तोड़ नहीं चढ़ेंगी। सुहानी दोम ने जिस तरह अपने तमाम गुनाह जो थे वो हुकूमत वक्त की झोली में डाल दिए, कितना अच्छा होता कि स्पीकर साहब वहाँ एक शीशा लगाते और वो अपने गिरेबान में शोहबाज शरीफ साहब को झांकने के लिए एक रूलिंग भी देते, जिसका वो भाई जिसके ये साहब गारंटर थे वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को मतलूब होते हुए इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के तदारक की बजाय वो अपने नवासे के पोलो ग्राउंड के अंदर बैठ के मैच एंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुलाकात करके मुल्क की सियासी सूरत हाल और खुसूसन सियासी उफ़क़ पर पाए जाने वाले हालिया तनाव के हवाले से बातचीत की। मुलाकात के दौरान वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने मौजूदा बजट में वज़ारत इत्तलात से मुताल्लिक़ा तरक्याती मंसूबों और इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क के इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के हवाले से पुरअज़्म है। इंतखाबी अमल में धांधली रोकने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानीज मुल्क का असासा है, उनको इंतखाबी अमल में लाज़मन शरीक बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनकी ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में इंतखाबी अमल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज, सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम, वफाकी वज़रा आज़म सवाती, फारूक हबीब और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बाबर आवान ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को इंतखाबी इस्लाहात के ज़मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और कानून साजी पर अब तक होने वाली पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से EVM के इंतखाबी अमल में इस्तेमाल में शफाफियत और तमाम आईनी तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत की गई। इमरान खान ने इजलास में ये हिदायत भी की है कि इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और खाने पीने की अशिया के खर्च में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। पाकिस्तान में हर 3 में से 1 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और इमरान खान ने दूध और इससे वाबस्ता मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फरख हबीब कहते हैं बिलावल साहब, आवाम आपकी असलियत जान चुके, बजट के झूठे आदाद शुमार बताना आपका शेवा बन चुका। बिलावल साहब बताएं कि NFC से मिलने वाले 1600 अरब से जायद के फंड्स कहां इस्तेमाल हुए हैं। महंगाई का वावेला करने वाले बिलावल बताएं सिंध की आवाम को जखीरा अंदोजों और गरा फरोशों के रहमो करम पर क्यों छोड़ दिया गया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अराकीन आपस में उलझ पड़े। इत्तेहादी जमात के अराकीन की भी हुकूमती अराकीन से तल्ख कलामी हुई। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बजाय वज़ीर दिफा परवेज खटक ने की, जबकि इजलास में PTI और इत्तेहादी जमातों के अराकीन शरीक हुए।
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسلم لیگ نون کے MNA روحیل اسکر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گالی دینا پنجاب کی ثقافت نہیں بلکہ نون لیگ کے رہنماؤں کا کلچر ہے۔ حکومت نے قومی بچت سکیموں کے شرح منافع میں اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے قومی بچت سکیموں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 سالہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 9.29 سے بڑھا کر 9.35% اور ریگولر انکم سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 8.64 سے بڑھا کر 8.76% کر دی گئی ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اس بار بھی بجٹ میں سندھ کو 84 ارب روپے کم دیے۔ اپنا حق مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا شکوہ۔ پچھلے سال بھی ہمیں جو بجٹ ایلوکیشنز دی گئیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس میں 25% کمی کی گئی۔ اس موجودہ رواں سال میں 84 ارب روپے اس موجودہ رواں مالی سال میں ہمیں کم دیے گئے۔ جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سندھ کارڈ استعمال نہیں کرتے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی کاٹ نہ کریں۔ جو یہ کٹوتیاں کرتے ہیں ہر لحاظ سے ہر معاملے میں۔ ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اس طرح کی آبزرویشن نہ دیں۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں تو ہمیں بلائیں۔ پارکس اور گراؤنڈز پر ہزاروں گھر بن چکے، انہیں گرانا ہماری ہمت نہیں ہے۔ 150 ارب روپے صرف کراچی کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ کہیں سے یہ رائے آ جائے کہ جی پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو میرے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں انتہائی قابل احترام ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی آبزرویشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ تاثر ہو کہ کوئی ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ ہمیں وہ رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں راستہ، ہماری غلطیاں ہیں ہمیں بلائیں کورٹ میں، ہماری پوری کیبنٹ کو بلائیں، پوری گورنمنٹ کو بلائیں، چیف منسٹر کو بلائیں اور ہم سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ میں 13 سال حکومت کے بعد بھی پیپلز پارٹی ناکام ہے۔ رہنما تحریک انصاف خرم شہر زمان بولے PPP حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے میں ناکام ہو گئی۔ بجٹ میں ٹرانسپورٹ کے نظام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 پروجیکٹ جو ہیں اس کے اوپر 4 آنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے خرچ نہیں کیے، 4 آنے بھی نہیں کہ صوبے کے اندر کوئی ڈیلیوری کر دی جائے۔ 110 ارب روپے وہ مراد علی شاہ کی طرف سے واپس رکھ دیے گئے ہیں۔ ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ اس صوبے کا نالائق اعلیٰ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر میں شہر کے اندر عوام کو ایک بہتر ٹرانسپورٹ دینے کے اندر ناکام ہو گیا۔ ہم انتظار کرتے کرتے رہ گئے کہ ہمیں بتایا جائے گا کہ اس بجٹ کے اندر 2020-21 کے اندر ایسے ٹرانسپورٹ کا کون سا نظام لے کر آیا جائے گا۔ ہمارے کراچی شہر کے اندر جو ہمیں مل رہے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے رکشے مل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں سازش کے تحت کہا جاتا ہے سندھ حکومت کچھ نہیں کرتی۔ کبھی فواد چودھری، کبھی اسد عمر تو کبھی ترجمان ایسی بات کرتے ہیں۔ وہ سندھ حکومت جو کام نہیں کرتی ہے، وہ سندھ جہاں کوئی کام نہیں ہوا، انسانیت کی خدمت جو سندھ حکومت کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت کر رہی ہے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی ادارہ ہے یا خیرپور کا کوئی مریض آپ کے پاس گیا ہو، دادو کا کوئی مریض گیا ہو؟ کچھ نہیں، یہ ہم نے کیا ہے۔ عید سے پہلے چھوٹی یا بڑی قربانی دیکھ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما منظور بسان کی ایک اور پیش گوئی۔ وفاقی بجٹ کو تاجر بجٹ قرار دے دیا، کہا یہ بجٹ غریبوں کے لیے نہیں امیروں کے لیے ہے۔ جس طرح مقدس ایوان میں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاستدانوں کو خراب دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے۔ بجٹ میں ہر چیز تو مہنگی ہو گئی، یہ کیسا عوامی بجٹ ہے؟ یہ عوامی نہیں، اسے تاجر اور بلڈرز مافیا دوست بجٹ کہہ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں مچھ کے قریب 12 واڑوں میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक जानिब दहशतगर्दों की सूरत हाल रही, मगर इसके साथ ही मावड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कार्रवाई की है और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को हलाक भी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी काकड़, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये एक अहम डेवलपमेंट है जो कि आज सामने आई है। बलूचिस्तान में हाल ही में दहशतगर्दी के जो बड़े वाकयात रुनुमा हुए हैं उसमें मुलविस दहशतगर्दों की निशानदही जिला बोलांग के इलाके मारवाड़ में हुई है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अब से कुछ देर पहले यहाँ पे बताया गया है कि दहशतगर्दों के ठिकाने पर जब वहां छापा मारा गया तो वहां मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। काफी देर तक ये एक्सचेंज हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 4 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। इन 4 दहशतगर्द भी फायरिंग के तबादले में मारे गए। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। वेलकम बैक। रुकने इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने वजीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी सरदार तनवीर अलियास खान के घर जाकर उनके चचा रुकने आजाद कश्मीर असेंबली सरदार सगीर चुगताई की ट्रैफिक हादसे में वफात पर ताजियत की और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा और वजीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी सरदार तनवीर अलियास खान के चचा सरदार सगीर चुगताई आजाद पतन के इलाके में कार हादसे का शिकार हुए थे। रुकने इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने सरदार तनवीर अलियास के घर जाकर उनसे मुलाकात की और सरदार सगीर चुगताई की वफात पर ताजियत पेश की। उनका कहना था कि सरदार सगीर चुगताई की आजाद कश्मीर के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत दरियाबुर्द होने वाले रुकने असेंबली और साथियों की मैयतों को जल्द तलाश करके वरसा के दुखों का मतावा करे। महमूदाबाद में ग्रीन बेल्ट पर कायम किया इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी है। 2 माह में खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को बगैर इम्तिहान मुस्तकिल करने पर नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वर्कर्स ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस देने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वर्कर्स ने भरपूर एहतजाज किया। कराची में एक और इमारत टेढ़ी हो गई। डीएचए हुकाम ने डिफेंस की हदूद में वाक़ई मखदूश बिल्डिंग पर एक्शन लेते हुए एक तरफ झुक जाने वाली इमारत सील कर दी है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एंटी एंक्रोचमेंट ऑपरेशन में तेजी आ गई। अलादीन पार्क के शॉपिंग मॉल्स, पिविलियन एंड क्लब के केडी ऑफिसर्स क्लब और औरंगी और गुजरनाले समेत शहर के दीगर मकामात गैर कानूनी तामीरात की तोड़फोड़ जारी रही। शहर कायद को तजावुजात से पाक करने का मिशन। केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयों में तेजी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। केएमसी के इंसदादे तजावुजात सेल के अमले ने हैवी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल में कायम 650 दुकानों को गिराने का काम जारी रखा। अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और फूड कॉम्प्लेक्स में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी रहा। इंसदादे तजावुजात सेल ने कश्मीर रोड पर वाक़े केडीए ऑफिसर्स क्लब में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके दौरान क्लब में कायम शादी हॉल्स, किचन, डाइनिंग हॉल और दीगर तजावुजात मुनहदिम की गयी। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में ST 14 पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कच्चे पक्के मकानात को मिसमार किया गया। दूसरी जानिब गुज्जर नाला और रंगी नाले की बहाली का ऑपरेशन जारी रहा। गुज्जर नाले पर चूना डिप्पू, लियाकताबाद और हाजी मुरीद गोट के करीब तजावुजात गिराई गयी। औरंगी नाले पर भी 3 मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया गया। शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर होने वाले ऑपरेशन के दौरान महकमा इंसदादे तजावुजात को जिला इंतजामिया, रेंजर्स, पुलिस और सिटी वार्डन्स की मुआवनत हासिल रही। कराची में गहरे बादल छा गए तो उधर मोटरवे M9 पर कहीं हल्की तो किसी जगह तेज बारिश हुई। शहर कायद में शाम को काले बादल छाए, कहीं तेज हवाएं चली तो किसी जगह हल्की बारिश हुई। उधर मोटरवे M9 पर कराची, बैरिया टाउन और मलका इलाकों में बादल बरस पड़े। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1121 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। वायरस के मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह दूसरे रोज भी 2.5% से कम रही। कराची में कोरोना वैक्सीन की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ इस्तेमाल शुदा वैक्सीन के वायस तल्फ करने के दौरान हुआ। कराची में हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम हुक्काम की गिनती के दौरान 240 वायल्स कम निकले। यकम जून को 734 वायल्स तल्फ करने की तहरीरी दरख्वास्त की गई थी। लाहौर शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन शहर के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले तमाम अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। लाहौर शहर के वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले तमाम अफराद की वैक्सीनेशन जारी है। मजीद जानते हैं जैन नकवी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूं तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना की वैक्सीन जो है वो उसका शॉर्टेज का सामना है, लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो लाहौर शहर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम, वहाँ पहुँचे और अपने अपनी कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगवाएं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ फर्स्ट डोज बल्कि इसके साथ साथ जो है वो सेकेंड डोज भी यहाँ पे लग रही है। जबकि लाहौर शहर के जो दीगर वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पे जो वैक्सीन है वो सिर्फ सेकंड डोज वालों को लगाई जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया जैन नकवी। तलबा और असतिज़ा को आलमी मेयार के मुताबिक तालीम कैसे दी जाए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने चीन के जियांगसो जबकि बरतानिया की लेस्टर यूनिवर्सिटी से मुआहदा कर लिया। प्रोग्राम के तहत हर साल असतिज़ा को PhD स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने उस्ताज़ा और PhD सतह के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करने, उनकी पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने और मुश्तरका डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए चीन की जियांगसू यूनिवर्सिटी और बरतानिया की लेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम का कहना था कि इदारे अपनी फैकल्टी से पहचाने जाते हैं। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम से दोनों यूनिवर्सिटियों की तालीमी और तहकीकी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इदारे अपनी फैकल्टी से पहचाने जाते हैं और उसमें आज ये 2 इनिशिएटिव्स आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो पाए हैं। एक जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ जिंगसू के साथ एक कोलैबोरेशन साइन कर रहे हैं जिसमें वो हमें 5 PhD के स्कॉलरशिप देंगे फॉर 5 ईयर्स। और इसी तरह से इसके बाद 1 बजे हम यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के साथ एक प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज से खर्च करेंगे हम। रजिस्ट्रार बीबी यास्मीन कहती हैं ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क के कोने कोने में फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए इल्म बांट रही है। इस प्रोग्राम के तहत PhD करके लौटने वाले उस्ताज़ कराम मियार तालीम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। मुल्क के कोने कोने में ये फायदा पहुँचेगा। हमारी फैकल्टीज वहाँ जाएंगे, हमारी स्टाफ वहाँ जाएगी और वहाँ से जब पढ़ के वापस आ जाएगी और वहाँ से जो सीख के आ जाएगी उन तमाम फील्ड्स में जो हमने में बात की है, चाहे वो मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर में हो, इन तमाम में हर एक स्टूडेंट को इंशाल्लाह फायदा मिले। तकरीब के इख्तिताम पर ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के तावन से तालिबात में स्कॉलरशिप्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन अरशद सती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलुस चावुशोगलू की दावत पर अंतालिया सफारती फोरम में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। अंतालिया हवाई अड्डे पर अंतालिया के डिप्टी गवर्नर चंगेज खान जान तुर्क ने तुर्की में पाकिस्तान के सफीर साइरस काजी और तुर्क वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। हजारा में सिजिकोट आबशार की दम बखुद कर देने वाली खूबसूरती सयाहों के लिए मकनतीस की हैसियत रखती है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।